So last time we tried to understand the data architecture, right? We have seen the management architecture. We have seen the high availability architecture. We have seen the network architecture. Now it's a cloud data architecture, right? So as a cloud data architecture, we've seen we have a two kind of a data. One is a structured data, one is an unstructured data. So unstructured data can go and store in a blob file and a data lake, right? And a structured data can be either a store in a relational data or a big data, correct? So relational data can be have a OLTP or OLAP. OLTP means insert, update and delete, and OLAP means analysis, right? So OLTP generally we call it for a Azure SQL, and OLAP we generally call it as an warehouse, right? So no matter which one you are using, either you are using Cosmos DB, Azure SQL, or a warehouse, we go ahead and use the storage which is a Azure storage, right? And Azure storage has a three type of replication. One is called a local replication. One is called as a zonal replication, means in a 3 zone. One is called as a geo replication, correct? Right? And then it can be either a standard or a premium. So when you select a standard, you can select any type. It can be zonal also, it can be geo also. And then we see that how we can go ahead and implement the security using the key vault, correct? Yes, correct. Yeah. So now we are going to understand the relational data structure today. Okay. Okay. So we are saying that a geo data architecture, relational data means database. Okay. So let me open a new one completely. Now understand this one and then we move next. So as we know that the database, it can be of a two type. One is called Transaction. OLTP. One is called relational, one is called non-relational, right? Yes. So one is called relational, one is called non-relational. नॉन रिलेशनल कोई ट्रांजेक्शनल बोलते हैं? नहीं, ट्रांजेक्शनल तो ये हो गया ना, non-relational, या इसको बोल सकती हो नो सीक्वल. नाउअडेज इट इज नोन है नो सीक्वल, ठीक है? सो अब हम बात कर रहे हैं आज रिलेशनल डेटा की. So Azure give you multiple type of relational data, but one of the very popular one is called SQL. Okay, we call it as an SQL. Now understand, when we are working on a SQL, it has a component. So for an example, one of the component is called database, है ना? SQL database. Another component is called a SQL server. So when we create, it create two component, one the database, one the server. ठीक है? So now let me first explain you the database part. So database part, again we see from a two point of view. One, high availability. Second, security. So one is a HA. Yes. Second is one performance. And third one is security. Good. Yes. So how much we have? We have a HA, performance, and security. So we will first, let's create a database. Then at the side by side, we will go and understand all these three: HA, security, and performance.
then we do same thing with SQL, HA, security and performance. Okay. Okay. So let me give you the remote control. Let me to open a resource. Now go there and create first a SQL server. You have a server. Good. Click add. We are creating first the server. Yes. Click add. Wait, it is bit थोड़ा स्लो है मेरे ख्याल से. Yes. एक मिनट रुक जाओ, मैं चेंज करके देखता हूँ. ये वाला क्यों नहीं है? वही कर. ठीक है. सो रिसोर्स ग्रुप में हम लोग फिर से वही लेंगे, डेमो रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज डेमो. यस, नीचे आ जाओ. सर्वर का नाम रखते हैं हम लोग TPCS-SQL. ठीक है. लोकेशन इस रीजन में बनेगा, ईस्ट यूएस. ठीक है. यूजर नेम रखते हैं हम लोग SQL एडमिन. पासवर्ड @123. यानी पहले क्या बनाएंगे हम लोग, सर्वर, है ना. सर्वर. ओके. गुड. नेक्स्ट करो. अब बाय डिफॉल्ट ये क्या बोलता है कि जो तुम्हारा सर्वर है वो एक्सेस कैसे होगा, राइट. सो यस करो, ताकि अज्योर की बाकी जो सर्विसेज है वो इसको एक्सेस कर सके. फॉर एग्जांपल, अगर तुम इसको फ्रंट एंड से जोड़ना चाह रही हो वेब ऐप से, है ना, तो तुम इसको कनेक्ट कर सकती हो. तो हमने यहाँ पे फायरवॉल रूल में क्या बोला कि आप प्लीज इसको अलाउ कर दीजिए, है ना. ओके. नेक्स्ट करो. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या तुमको अज्योर जो तुम्हारा सिक्वेल है उसको सुरक्षित करना है. तो बाय डिफॉल्ट ये विंडोज में अज्योर डिफेंडर ऑन कर देता है. ठीक है. कर दो स्टार्ट फ्री ट्रायल. गुड. तो ये क्या करेगा, एक डिफेंडर, एक सर्विस है जिसको ऑन करेगा. वो तुम्हारे इस सिक्वेल इंस्टेंस को, इस सिक्वेल को ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा. ओके. ठीक है. ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट अ न्यू स्टोरेज अकाउंट फॉर सेविंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. तो पूरा लॉग फाइल तुम यहाँ से देख सकती हो. ठीक है. ओके. नेक्स्ट करो. कोई टैग वैग नहीं चाहिए. नेक्स्ट करके रिव्यू एंड क्रिएट करो. तो अभी हमने क्या बनाया, अभी हम सिर्फ बना रहे हैं क्या, SQL सर्वर. और मजे की बात कि हमको कोई सिक्वेल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. नहीं है. तो फंडामेंटल क्या होगा हमारे पास, यानी कि सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक सिक्वेल का सर्वर. सो लेट्स से मैंने रीजन लिया ईस्ट यूएस में मैंने बनाया एक सर्वर, है ना. अब इस सर्वर के अंदर हम डेटाबेसेस बनाएंगे. So it can be 1 database, it can be a 2 database, it can be a 3 database. Yes. ये हमारा क्या हो गया, SQL सर्वर. और इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 डेटाबेस है. एक
मे बी HR के लिए है, एक फाइनेंस के लिए है ना. सो इट कैन बी DB1, इट कैन बी अ DB2. अब यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल समझो. जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो बेसिकली हम डेटाबेस में क्यूरी करते हैं ना, या डेटा डालते हैं. Yes. जब भी तुम डेटाबेस पे काम करती हो ना, तो एक सर्वर का 3 चीज यूज करती है. मेमोरी, स्टोरेज एंड CPU. ठीक है. Okay. तो तुम क्या यूज करती हो? मेमोरी, Storage and CPU. CPU. So you use memory plus CPU CPU. प्लस स्टोरेज, है ना. स्टोरेज का Yes. IO जिसको बोलते हैं हम लोग. Yes. अब इन तीनों को मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट एक टर्मिनोलॉजी देता है जिसको बोलते हैं हम लोग DTU, डेटा ट्रांसमिशन यूनिट. ठीक है. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Data ट्रांसमिशन यूनिट. unit. अब इसका एक पूरा कैलकुलेटर आता है, बट इसको तुम ऐसा समझो कि मैं एक डेटा मैंने डाला, नेम में रवि, एज में लेट से कोई एज, और सिटी में हैदराबाद. तो ये जो एक रो डाला ना, एक्चुअली मैंने एक DTU कंज्यूम कर लिया. ठीक है. Okay. अब मान के चलो कि मेरे पास में एक टेबल में चार रो बना हुआ है, राइट. मैंने क्यूरी चलाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पार्टिकुलर टेबल. तो क्या होगा? वो चारों रो को लेकर आ जाएगा. तो ये जो चारों रो लेकर आया ना, ये हमारे लिए 4 DTU बन गया. Okay. क्योंकि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, राइट. Yes. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसमिट यूनिट. और माइक्रोसॉफ्ट जो तुमको चार्ज करता है वो पर DTU चार्ज करता है. ओके. सो तुम्हारा जो SQL में चार्ज लगता है वो कैसे लगता है? Per unit. RGU और DTU यूनिट, राइट. डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का डेटाबेस ले रही हो. तुमको 5 DTU फ्री मिल सकता है या 40 DTU फ्री मिल सकता है, बट अब उसका चार्ज माइक्रोसॉफ्ट नहीं लेगा. ठीक है. Okay. सो माइक्रोसॉफ्ट कैसे चार्ज करता है? वो DTU के हिसाब से, कि आपने कितना मेरा कंप्यूट उठाया, आपने कितना मेमोरी कंज्यूम किया, आपने कितना मेरा CPU का पावर यूज किया, आपने कितना मेरे को स्टोरेज यूज किया. Okay. ठीक है. अब यहाँ पे एक फंडामेंटल फिर से समझो. पहले चलते हैं हम लोग यहाँ वापस. ये बन गया. गो टू रिसोर्स करो. अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या क्या आ गया. हमारे पास में सर्वर बन गया, राइट. Yes. सर्वर में देखोगी तो हमारे पास में डेटाबेस हो सकता है, करेक्ट. Correct. अभी हम देखते हैं इलास्टिक पूल क्या है. और फिर देखो यहाँ पे क्या आता है? DTU. हेलो. हमारे पास क्या आता है? यस. DTU. यहाँ है. अभी ये बोल रहा है कि आपको इतना DTU मिला हुआ है. हाँ, देखो गुड मॉर्निंग. बोलिए. Okay. अभी तुमने इतना यूज नहीं किया है, जीरो है बिल्कुल, सॉरी. है ना. सो Yes. इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? फाइन. Fail over Same proofs. charges. अच्छा. No, 16 for single, and if One there is a second. batch, it would be 12. Then
यहाँ पे क्लिक करो, ऐड अ ग्रुप। अब देखो ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फेल ओवर ग्रुप का नेम, तो एक नाम डालो, इसको डाल दो TPCS SQL क्लस्टर। ठीक है। Yes. अब ये बोल रहा है कि आपको, आपके पास कोई सेकेंडरी सर्वर है, हम फेल ओवर कहां करेंगे। ओके, सो क्लिक करो कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड सेटिंग। तो ये बोल रहा है कि अभी आपके पास एक ही सर्वर है ना, उसका नाम क्या है, TPCS SQL, राइट। Yes. लेट्स क्रिएट अ न्यू सर्वर, सो क्लिक क्रिएट अ न्यू सर्वर। नाम डाल दो इसका TPCS DR SQL। एक हमारा प्राइमरी SQL हो गया, एक हमारा DR हो गया, है ना। Okay. इसका सेम नाम डाल दो, यूजर नेम SQL एडमिन, पासवर्ड गौर से देखना। तो दोनों का सेम रखना जरूरी है? नहीं, अपनी कन्वीनियंट के लिए सेम रखना। हम लोग क्लस्टर बना रहे हैं बिना किसी मेहनत के। स्क्रॉल डाउन करो। अब ये बोल रहा है रीजन क्या रखना है, ईस्ट यूएस रखना है। तुम इसको किसी और रीजन में भी रख सकती हो। तो और रीजन में रखने का फायदा है ना। हाँ, तो यहाँ पे बना लो वेस्ट यूएस, क्योंकि एक तो ईस्ट में हो गया, तो फिर अब उसी रीजन में रख दिए तो फिर फेल ओवर कैसा। हाँ वेस्ट यूएस ले लो, गुड, राइट। और यहाँ पे नीचे चेकबॉक्स भी लगा दिया कि हमारा जो एज्योर का सर्विसेज है वो सेकेंडरी को भी एक्सेस कर सकता है, करेक्ट। Yes. क्लिक सेलेक्ट करो, गुड। अब ये जो फेल ओवर है ये कैसे होगा, ऑटोमेटिक होगा कि तुम करोगी। ऑटोमेटिक का मतलब इन केस अगर प्राइमरी फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सेकेंडरी में मूव हो जाएगा। Yes. मैनुअल में क्या है कि अगर प्राइमरी फेल हो गया तो सेकेंडरी में तुमको मूव करना है, बट प्रैक्टिकली ये होगा नहीं। कारण क्या कि जब भी तुम फेल ओवर इनिशिएट करती हो वो हमेशा प्राइमरी से डेटा और सेकेंडरी से डेटा को सिंक कराने की कोशिश करेगा। क्योंकि प्राइमरी डाउन है तो सिंक तो होगा ही नहीं डेटा, Yes. राइट। ऑटोमेटिक क्या होगा कि जैसे ही प्राइमरी डाउन होने लगेगा वो ऑटोमेटिकली सिंक करके एज्योर खुद ही फेल ओवर दे देगा। ठीक है। Yes. अब जब वो फेल ओवर हो रहा है उसी वक्त अगर कोई ट्रांजेक्शन तुम्हारे पास आ रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा, तो देखो एक ग्रेस पीरियड लिखा हुआ है ना। Yes. उसको ड्रॉप डाउन करो। तुमको कितने देर का ग्रेस पीरियड चाहिए। ग्रेस पीरियड मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक तुम्हारा ट्रांजेक्शन लॉस्ट भी हो सकता है। लॉस्ट भी हो सकता है। हाँ, तो तुम कितने, अब देखो एक सर्वर फेल हो गया है ना, तुम्हारा सारा डेटा हिट होने की कोशिश कर रहा है प्राइमरी पे, Yes. और तब तक वो फेल ओवर हो रहा है सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी में फेल ओवर होने में टाइम लगेगा ना, करेक्ट। तो तुम जितने देर का डेटा है उतना रख सकती हो। तो हम अभी बाय डिफॉल्ट मिनिमम 1 आवर है, 1 आवर ही रखते हैं। और ये स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री के अनुसार से। इसको तुम मतलब कोई भी चाहे ऑन प्रीमाइसेस में बनाते हैं तो सेम ही स्ट्रक्चर होता है। इसको 1 आवर रखो। और हमारे पास कोई डेटाबेस तो है नहीं अभी, तो डेटाबेस बनाए ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ क्लस्टर सर्वर बना रहे हैं, करेक्ट। सो क्रिएट कर दो। सो हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, वरना हम ऐड करते हैं। अभी क्या कर रहा है, ये एक सर्वर बना रहा है। तो अब यार गौर से देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसी सर्वर का एक रेप्लिका और बना रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा हो गया SQL DR। एक हमारा ईस्ट यूएस में है, दूसरे को हमने कहा बना दिया, वेस्ट यूएस। अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटाबेस बनाएंगे उस डेटाबेस को हम यहाँ रेप्लिकेट कर देंगे।
करेक्ट। सो हमारा DB1, तुम चाहो तो DB2, नॉट नेसेसरी कि सारा डेटाबेस ही रेप्लिकेट करो, बट ये तुम्हारी चॉइस पे है, तुम डेटाबेस को जिसको चाहो रेप्लिकेट कर सकती हो। तो एक तुम्हारा हो जाएगा एक्टिव कॉपी, एक तुम्हारा हो जाएगा पैसिव कॉपी, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, HA दे रहे हैं, High availability. Okay. करेक्ट। Yes. सो अब ये जो एक सर्वर दूसरे सर्वर को कनेक्ट किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम लोग डेटाबेस के हिसाब से या माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से इसको क्लस्टर बोलते हैं, है ना। सो हमने क्लस्टर बनाया, और आजकल नया टर्मिनोलॉजी ले देता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेल ओवर, जो अभी हमने बनाया है ना। या तो इसको बोलो क्लस्टर बनाया, या तो इसको बोलो फेल ओवर बनाया। सर डेटाबेस तो सर्वर के अंदर ही बनेगा ना? हाँ करेक्ट, तो बट तुम एक से ज्यादा सर्वर बना रखी हो, है ना, ताकि अगर एक सर्वर ही क्रैश कर जाए, एक रीजन ही क्रैश कर जाए, तो हम उसको फेल ओवर करा सके। सर ऊपर हमने लिखा है SQL सर्वर, SQL डेटाबेस अलग अलग। हाँ कहाँ है, इस सर्वर के अंदर ही है डेटाबेस ना। नहीं, ऊपर जो हमने डिवीजन किया है। हाँ, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सर्वर होता है, एक रिटर्न किया था। डेटाबेस होता है, हाँ ठीक है ना, मतलब दो कंपोनेंट पे काम हाँ। करोगे। तो अभी हम पहला कंपोनेंट ही बनाए हैं सर्वर, अभी डेटाबेस बनाया ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ वापस आते हैं अपने पोर्टल पे, अब देखो ये कॉन्फ़िगर हो तो गया, है ना, आप तो बोले कि वो नया आलू है ना। तो आप वापस तो नहीं जब आप करोगे। इसको क्लिक करोगी तो ये तुमको दिखाएगा कि हम कहाँ से कहाँ है, देख रही है, हाँ। करेक्ट। अच्छा और जब तुम इसको फेल ओवर मारोगी तो क्या होगा, तो इधर आने की रेप्लिकेट होने की कोशिश करेगा। ऑटोमेटिक भी है, और तुम इसको मैनुअल भी कर सकती हो, लेकिन जब तुम मैनुअल रखोगी तो ऑटोमेटिक नहीं होता हाँ। है ना। तो जब अगर फेल ओवर मारोगी तो कि जैसे ही यस करोगी तो क्या होगा, वो तुम्हारा वेस्ट यूएस प्राइमरी बन जाएगा, हाँ। ठीक है, ठीक है। करेक्ट। सो अब अभी तक हमने क्या बनाया, अभी तक हमने डेटाबेस बनाया, हमने सर्वर बनाया, अभी हमने डेटाबेस नहीं बनाया, करेक्ट। हाँ, correct. अब हम बनाने जाएंगे डेटाबेस। सो यहाँ क्लिक करो डेटाबेस पे, SQL डेटाबेस लिखो। सर हम इसके अंदर ही नहीं बना सकते? हाँ, इसके अंदर ही बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। SQL, नॉट MySQL। क्लिक करो, तो मैं इसको यूज करूं कि नहीं करूं? ऐड करो, अच्छा, ठीक। ठीक है, नीचे आ जाओ, वेरी गुड। अब डेटाबेस का नाम रखो, लेट से बोलते हैं हम इसको DB1, HR DB1। तो HR वालों के लिए डेटाबेस बना रहे हैं। अब नीचे देखो एक आ रहा है तुम्हारे पास ऑप्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पूल, है ना। अब ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को, इलास्टिक पूल कंसेप्ट क्या होता है। देखो अभी जो तुमने डेटाबेस लिया हुआ है, हमने अभी जो हमने ये डेटाबेस बनाया है, ये हम किसके अंदर बना रहे हैं, एक सर्वर के अंदर बना रहे हैं, करेक्ट। अब मान के चलो कि ये जो सर्वर है, इसके अंदर में हमने कैपेसिटी लिया है कि आप मेरे को 64 GB का रैम दे दो, ठीक है, और हमें 8 CPU दे दो, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि आप हमें 100 GB का स्टोरेज दे दो। तो ये कैपेसिटी किसकी हो गई, सर्वर की हो गई, सर्वर की, करेक्ट। अब इस सर्वर में अगर तुम एक डेटाबेस बनाओगी तो वो सारा कैपेसिटी यूज कर जाएगा, चाहे वो डेटाबेस का उतना यूटिलाइजेशन हो या ना हो, ओके, करेक्ट। अगर तुम दूसरा डेटाबेस बनाओगी तो वो भी वो यही इसी रिसोर्सेस को वो क्लेम करने की दोबारा कोशिश करेगा, करेक्ट ना, ओके, राइट। तो या तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि भैया एक एक सर्वर बनाओ और हर सर्वर में एक ही डेटाबेस रखो, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, है ना, एक सर्वर। लेकिन अब हम इतनी बार में एक सर्वर और एक डेटाबेस बनाए तो मेरा तो स्ट्रक्चर भी तो बड़ा हो जाएगा। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि आप एक पूल बनाओ, इस पूल में आप अपने डेटाबेस को डाल दो, ठीक है। ये पूल क्या करेगा कि जो डेटाबेस, जैसे कि अभी हम HR डेटाबेस पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है 10:05 पे, राइट।
तो एचआर डेटाबेस को सबसे ज्यादा कैपेसिटी मिल जाएगी, मतलब ज्यादा मेमोरी मिल जाएगी, ज्यादा सीपीयू मिल जाएगी, ज्यादा हार्ड डिस्क मिल जाएगा, आईओ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला डेटाबेस पे अभी उतना यूज नहीं हो रहा, दूसरा वाला डेटाबेस का यूज 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही वो 12 बजे दूसरा डेटाबेस पे लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, उसको फिर ज्यादा कंप्यूट दे देगा, यानी कि वो बैलेंस करता रहता है कौन कहाँ यूज हो रहा है, राइट। राइट। तो वो अपने आप करेगा वो या अपने हम आप लोग को करेगा, टाइमिंग देना नहीं वो अपने आप करेगा। टाइमिंग कैसे, तुमको तो पता ही नहीं है ना। वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि यस किस डेटाबेस को यस ज्यादा अभी रिसोर्सेज की जरूरत है। यस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पूल। अब वो बैटरी चला गया, क्या हुआ, चार्जर में? हाँ। तो इलास्टिक पूल क्या करता है, ये बेसिकली डीटीयू को शेयर करता है ना। यस। हाँ, सोफा टर्मिनोलॉजी सब समझ में आ रहा है ना, राइट। यस सर। तो वो क्या होता है, आपको आपको एज ए कस्टमर आपको अलग अलग सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। करेक्ट। एक ही सर्वर में आपने इलास्टिक पूल बना लिया, उसके अंदर में आप चाहो तो डेटाबेस रखो, वरना नहीं रखना है मत रखो। रखोगी तो शेयर होगा, नहीं रखोगी तो सारा जो भी सर्वर में कैपेसिटी है उसको कंज्यूम कर लेगा वो, यस। है ना। जैसे कैसे है कि हम लोग हाँ करेक्ट, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ जी हम डीटीयू बनाना चाहते हैं, हम इलास्टिक पूल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करो। अब क्रिएट न्यू करो, एक नया इलास्टिक पूल ले रहे हैं, नाम रखो इसका टीपीसीएस ईपी, है ना, इलास्टिक पूल। ओके कर दो। अब हमने इलास्टिक, अब ये बोल रहा है कि इस इलास्टिक पूल को क्या कंप्यूट कैपेसिटी देना चाहती हो आप, करेक्ट। क्लिक करो कॉन्फ़िगर इलास्टिक पूल। अब देखो यहाँ पे कितने तरह के हैं, जनरल पर्पस है, बिजनेस क्रिटिकल है, सबका आईओप्स देखती जाओ। अगर जनरल पर्पस लोगी तो आईओप्स क्या मिलेगा तुमको, 500 से 20,000 आईओप्स मिलेगा, और यहाँ पे 5,000 से 2 लाख से ऊपर का आईओप्स मिलेगा। यहाँ पे लेटेंसी बहुत हाई होगी, यानी कि तुम जब डेटा को पढ़ने की कोशिश करोगी, क्यूरी करोगी, तो तुमको 2 से 10 मिली सेकेंड का लेटेंसी आएगा। मतलब सेलेक्ट कमांड चला के बैठो, चाय वाय पी के आओ, तो तुम्हारा क्यूरी रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर जनरल पर्पस डेटाबेस मान के चलो अमेजोन वाला यूज कर रहा हो, और तुमने मोबाइल वाले पे क्लिक कर दिया उसके पोर्टल पे, तो बाहर जाओ चाय वाय पी के आओ, तब जाकर मोबाइल वाला खुलेगा, क्योंकि वो जाएगा डेटाबेस में पढ़ेगा, फिर सारा मोबाइल का डेटा उठा के लाके तुमको दिखाएगा। समझ में आ गया, है ना। दूसरा, तो जब तुम यहाँ पे जनरल पर्पस में आओगी, तो देखो यहाँ पूल सेटिंग बताता है। तो बाय डिफॉल्ट तुमको जनरेशन 5 दे रहा है, बोल रहा है कि मैं 80 कोर दूंगा, 408 जीबी मेमोरी दूंगा। अब इस पूल के अंदर में इतना कैपेसिटी है जिसको सारे डेटाबेस शेयर कर सकते हैं, करेक्ट है, राइट। अगर तुमको चाहिए कि नहीं जी मैं तो अभी बस टेस्टिंग कर रहा हूं, तो तुम कहां जाओगी, लुकिंग फॉर बेसिक स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, अगर तुमने बेसिक ले लिया या स्टैंडर्ड ले लिया, तो तुमको जो बैकग्राउंड में स्टोरेज मिलेगा ना, वो स्टैंडर्ड स्टोरेज मिलेगा, मैग्नेटिक डिस्क मिलेगा। हमें तो प्रीमियम चाहिए ना सीक्वल के लिए। कम से कम अगर तुम स्टैंडर्ड लोगी तो तुमको सिर्फ 100, ये देखो यहाँ पे 3000 डीटीयू तक तुम मैक्सिमम यूज कर सकती हो। यानी तुम्हारा ट्रांजेक्शन अगर 3000 से ऊपर पार होने लगा, तो ये तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा, राइट। अगर प्रीमियम लेते हैं तो हमारा डीटीयू बढ़ के 4000 हो जाता है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रहा है ना, एक पूल में 4 डेटाबेस है, चारों डेटाबेस इस डीटीयू को शेयर करेगी। तुम चाहो तो पर डेटाबेस भी सेटिंग कर सकती हो कि 125 डीटीयू जो हमें मिल रहा है, उसमें पर डेटाबेस कितना डीटीयू हम यूज करेंगे, ओके। देखो ना, पर डेटाबेस
एक है अच्छा पर डेटाबेस, एक पर डेटाबेस है। अच्छा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस डेटाबेस को ज्यादा देना है, नहीं पर डेटाबेस तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा पर पूल पे चले जाओ तो हम क्या बोलते हैं कि भैया मेरे को पूल दे दो, मेरे को पूल में 125 DTU दे रहा है, 50 GB का स्टोरेज दे रहा है ना। तो ये तुम्हारे लिए, और साथ में तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या है, जोन रिडंडेंसी। वो क्योंकि हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो ये तो हमें एक ही देना चाहिए ना फिर। हाँ अब देखो अगर स्टैंडर्ड लेते हैं तो जोन रिडंडेंसी नहीं दे रहा है हमें, नहीं देता है। ठीक है। प्रीमियम ले रहे हैं तो देगा फिर तो ऑप्शन था। करेक्ट है, राइट। यस। सो इसका मतलब कि अगर हम हाई अवेलेबिलिटी मोड में जाते हैं इलास्टिक पूल के बाद, तो इलास्टिक पूल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि ये जो आपका डेटाबेस बनेगा इसकी 3 कॉपी बनेगी, हर जोन में 1 कॉपी रहेगा। एक तो सर्वर फेल ओवर है, वो तो समझ में आ गया, करेक्ट ना। हाँ वो दूसरा क्या है कि अगर मान के चलो एक डेटा सेंटर बैठ जाता है तो भी तुम सेफ हो, कारण कि तुम्हारा तीनों उसी रीजन के तीनों डेटा सेंटर में कॉपी बन रहा है, करेक्ट। सो मतलब साफ है कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमें प्रीमियम दो, तो अब तुम अपने इलास्टिक पूल का जोनल रिडंडेंसी डिफाइन कर सकती हो, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है जी आप मेरे को जोनल रिडंडेंसी दे दो। जोनल रिडंडेंसी मींस आपका जो ये जो डेटाबेस है इसकी 3 कॉपी बनेगी, तीनों कॉपी अलग अलग डेटा सेंटर में रखा जाएगा, करेक्ट है, राइट। तो आप अप्लाई करो। तो हमने क्या लिया, हमने 125 DTU लिया, करेक्ट, राइट। अगर हम DTU नहीं लेते, अगर हम इलास्टिक पूल नहीं लेते तो क्या होता, तो फिर सर एक ही डेटाबेस पूरा DTU जो हमारे पास अवेलेबल होता जैसे नो करेंगे ये डेटाबेस पे आ जाता है, फिर ये पूल खत्म कर देता है ना। फिर बोलता है कि जी आपका पूरा डेटाबेस ही एक ही डेटाबेस पूरा खा जाएगा, एक ही डेटाबेस, राइट, करेक्ट है, राइट। सो हम तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन, गो अहेड, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट प्रीवियस गुड। नेटवर्किंग में हम क्या करेंगे, अब ये बोलता है कि आप इसको कैसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे। सो बाय डिफॉल्ट हमने सर्वर में ऑलरेडी इनेबल कर दिया है, राइट, है ना। सो नेक्स्ट कर लो, गुड। अब ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास कोई डेटा है क्या, कोई सैंपल डेटाबेस पे काम करना है या ब्लैंक है। हाँ मैं बोलता हूँ जी हमारे पास में सब कुछ ब्लैंक है ना, नीचे आ जाओ। डिफेंडर बाय डिफॉल्ट हमारा चूंकि सर्वर पे ही इनेबल है, सर्वर पे किया था ना हमने इनेबल इसको, हाँ किया था, है ना। तो सर्वर की सारी सेटिंग, चूंकि हमने जो अपना सर्वर उठाया है यहाँ पे, ये सर्वर हमने ये वाला उठाया है ना, TPCS SQL, करेक्ट, राइट। बट हम चाहे तो हाँ वेस्ट भी ले सकते हैं, करेक्ट, वेरी गुड। सो कहाँ गया सर, नहीं वो तो ठीक है, ये ईस्ट में ही बनाया था, हमने बनाया था ना DTU। यस सर। Changing basic options may reset selections you have made. क्या लिखा मैंने, अगर हम बेसिक ऑप्शंस को चेंज करते हैं तो शायद रीसेट हो जाता है। अच्छा ओके कोई नहीं, हम एक फिर से बना लीजिए। हाँ अच्छा TPCS हाँ जी अभिषेक सर मॉर्निंग। कितने बजे,
हाँ बिल्कुल सर, 5:30 तो बढ़िया टाइम है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ठीक है, डन डन डन, मैं भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप। हाँ हाँ हाँ, चलो अदिति नेक्स्ट कर लो। सर ये अभी भी नहीं बनाने दे रहा, क्यों? ऊपर वही आ रहा है, बेसिक ऑप्शंस में रीसेट सिलेक्शन। कहाँ सिलेक्ट किया है? बन तो गया, बन गया। अच्छा ओके, तो हमें क्या लेना है? हमें इसमें लेना था प्रीमियम and zone redundancy. Okay, now next is networking. Additional setting में हमें कुछ नहीं करना है because already सब कुछ enabled है. Now I am going to say review and create. So basically मैंने क्या किया है, अब मैं अपने सर्वर के अंदर में एक डेटाबेस बनाया है, वो डेटाबेस भी इलास्टिक पूल के अंदर बनाया है। यस ठीक है, और वो जो डेटाबेस है वो बैकग्राउंड में स्टोरेज क्या यूज कर रहा है? प्रीमियम। प्रीमियम यस। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, ये बन जाएगा। सर ये MySQL OLTP का एग्जांपल है, मतलब उसी की सर्विस है ना? अरे हाँ, बट माई सिक्वेल ऑरेकल का प्रोडक्ट है, सिक्वेल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। SQL तो हम SQL यूज कर रहे हैं, OLTP जो आपने रिवीजन किया था। OLTP एग्जैक्टली, OLTP। हाँ। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा तुम देख लो। हाँ। ये हमने अभी तक क्या क्या किया है, तुम लोग आपस में डिस्कस करो। स्टोरेज, ये डेटाबेस में सर्वर बनाया, सर्वर को फेल ओवर क्लस्टर में डाला, फिर हमने लास्ट उसके बाद सर्वर के ऊपर में हमने क्या इनेबल किया, हमने डिफेंडर इनेबल किया, राइट, सिक्योरिटी देने के लिए। सर हम हाँ ओके है ना। सो उसके बाद हमने इलास्टिक पूल बनाया एक सर्वर में, उस इलास्टिक पूल में को हमने DTU डिफाइन कर दिया, कितना DTU चाहिए हमें, राइट। हाँ राइट। और उसके बाद हम उसके अंदर डेटाबेस बना रहे हैं, है ना। डेटाबेस में भी प्रीमियम डिस्क लिया है, जिसके कारण हमें जोनल रिडंडेंसी मिल रही है। करेक्ट करेक्ट। तो हमने परफॉर्मेंस में क्या देखा, परफॉर्मेंस में कौन सा पैरामीटर आ गया, परफॉर्मेंस में तुम्हारा आ गया, कौन सा फीचर हमने परफॉर्मेंस के लिए यूज किया, हमने यूज किया इलास्टिक पूल फीचर। ठीक है, HA के लिए कौन सा हमने यूज किया, HA के लिए हमने दो फीचर यूज किया, एक जोनल रिडंडेंसी, एक फेल। जोनल रिडंडेंसी किसके ऊपर में इनेबल किया हमने, डेटाबेस के ऊपर, है ना। डेटाबेस। बट जोनल रिडंडेंसी तुमको कब मिलेगा, जब तुम प्रीमियम डिस्क में जाएंगे। ये DB के ऊपर हो गया, करेक्ट। करेक्ट। और उसके बाद हमने क्या लिया, हाई अवेलेबिलिटी लिया। दूसरा फीचर हमने क्या लिया, हाई अवेलेबिलिटी में फेल ओवर क्लस्टर। बट फेल ओवर किसका फीचर है, सर्वर का। तो हमने सर्वर लेवल रिडंडेंसी भी दे दिया, डेटाबेस, हमने डेटाबेस लेवल रिडंडेंसी भी दे दिया, करेक्ट। सिक्योर, अगर हम उसी डेटाबेस नहीं उसी सर्वर में दूसरा डेटाबेस बनाते हैं और उसमें इलास्टिक पूल नहीं देते हैं तो
तो वो बिल्कुल अलगली उसको उसके लिए तुमको अलग से डीटीयू डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो ओके। अगर एक डीटीयू का $1 है, करेक्ट, तो एक जगह तुमने 10 डीटीयू का एक पूल बना दिया है, तो तुम $10 में ही तुम 50 डेटाबेस मैनेज कर रही हो। अच्छा, एक जगह पे अगला 10 डीटीयू बिल्कुल रिजर्व है एक ही डेटाबेस के लिए, तुम चाहे डेटाबेस को यूज करो। अगर वो नहीं भी यूज होता है तो भी उसका नहीं बिल आता रहेगा। नहीं, जब तक यूज नहीं होगा तो आएगा। कि मान लीजिए हम एक सर्वर डाल दिए, लेकिन वो 10 DTU हम उसके लिए रिजर्व कर दिए, बट वो 10 DTU यूज करता नहीं है, नहीं, पैसा नहीं लगेगा, तो वो दो DTU में ही उसका काम चल जाएगा। सिक्योरिटी में हमने क्या किया, कौन सा फीचर इनेबल किया, डिफेंडर, है ना। डिफेंडर, यस। याद रखना कि तीनों चीज के लिए हमने अलग अलग फीचर इनेबल किए, एचए के लिए अलग, परफॉर्मेंस के लिए अलग, सिक्योरिटी के लिए अलग। बन गया। यस। अब सबसे पहले हम सर्वर जाके देखेंगे, सर्वर पे जाओ। दो सर्वर बन गया, एक डीआर है, एक मेन है, राइट। हाँ, मेन में हमने डेटाबेस बनाया। क्लिक करो। अब यहाँ देखो डेटाबेस आ गया, नीचे आके नीचे डेटाबेस चेक करो, मेन्यू साइड, मेन्यू साइड, अच्छा, है ना, सीक्वल डेटाबेस, क्लिक करो, राइट। तो HRDB है और हमारा इलास्टिक प्रीमियम प्राइसिंग है, राइट, करेक्ट। मगर ये डेटाबेस अभी हमारे फेल ओवर का पार्ट नहीं है, करेक्ट ना, है ना, क्योंकि ये जो हमारा है इसमें अभी डेटाबेस तो ऐड ही नहीं किया हमने, सिर्फ सर्वर का भी बनाया हुआ रिडंडेंसी। अच्छा, तो फेल ओवर फिर हमें डेटाबेस के लिए अलग से इनेबल करना है, तो डेटाबेस डालना पड़ेगा ना, ऐड डेटाबेस। हो सकता है तुम्हारे पास 50 डेटाबेस हो, तुम 2 ही का सिर्फ रिडंडेंसी चाहती हो, ओके, है ना। तो जैसे ही तुम यहाँ पे डालोगी, वो क्या होगा, देखो यहाँ प्राइस आने लगेगा, राइट, है ना। सो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हम एक डेटाबेस है जो कि इसके अंदर ऐड करेंगे, जो हमें, तो ये हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, ये था ना डेटाबेस HRDB, राइट। ये इलास्टिक पूल है, उसके अंदर डेटाबेस है, करेक्ट। देखो तुम्हारा कॉस्ट कितना आ रहा है मंथली, 46,000। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो रेप्लिकेशन का चार्ज ऐड हो गया, और दूसरा डेटाबेस का तुम्हारा एक कॉपी भी बना दिया, ओके, करेक्ट। तो फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, बट ये ऑप्शन यहाँ पे है, करेक्ट है, राइट। सो अब हमने क्या किया, हमने इलास्टिक पूल बना दिया, हमने इलास्टिक पूल के अंदर में अपना DTU डाल दिया, राइट, और हम देख रहे हैं कि स्टोरेज में कितना यूज हो रहा है, कितना नहीं यूज हो रहा है, राइट। अब इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स में जाते हैं, यहाँ पे हमें दिखाएगा कि हमने कितना CPU यूज किया अभी तक, हमने कितना डेटाबेस यूज किया अभी तक, हमने कितना डिस्क स्पेस एलोकेट किया, ये सारा कुछ तुम मैट्रिक्स के अंदर देख सकती है, ठीक है। सो अब हम वापस चलते हैं अपने SQL डेटाबेस पे। ये हमारा SQL डेटाबेस है, क्लिक करो इसको। अब इस SQL डेटाबेस को हमें कनेक्ट करना है ताकि हम इसके अंदर कुछ डेटा वगैरह डाल सकें, राइट। तो हम क्या जाएंगे, देखो यहाँ क्यूरी एडिटर आ रहा है, क्लिक करो। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे पासवर्ड दो और कनेक्ट करो ऑनलाइन, ये करके देखना, हाँ, खाली देख के नहीं बुझा रहा। अभी हाँ ना, डोंट वरी, ये आएगा। ये बोल रहा है कि आपका जो IP एड्रेस है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये अज्योर का जो पर्टिकुलर IP है 122.52, ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है ये, तो इसको हम कॉपी करेंगे और देखो नीचे आ रहा है सेट सर्वर फायरवॉल, है ना। यहाँ पे तुमको फायरवॉल के अंदर में ऐड करना है उस पर्टिकुलर IP को, करेक्ट। वो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे आता है ऐड क्लाइंट IP, देख रही है, इसको ऐड करेंगे।
ये तुम्हारा आईपी आ गया, करेक्ट। Yes. अब इसको सेव कर दो। ये बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी है जिसके थ्रू वो अनऑथराइज एक्सेस से रोकता है। अब इसको ओके करोगी, अब ये लॉगिन करा देगा। कर गया लॉगिन, Yes. है ना। सो अब यहाँ पे तुम टेबल बना सकती हो। अभी तो ब्लैंक होगा, अभी कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। क्रिएट टेबल, लेट्स से EMP डेटा, और यहाँ नाम यहाँ लिखेंगे नेम varchar 10 एज इंटेजर, बस 2 ही रखते हैं। इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, रन करते हैं। क्या गड़बड़ हुआ? यहाँ बोल रहा है इनकरेक्ट सिंटैक्स है। एक सेकंड रुको, जरूरत तो नहीं है। लेट्स सी, वहाँ स्पेस होगा एम्प्लॉय डेटा के बाद, एम्प्लॉय डेटा के पास एरर आएगा। एरर है। हाँ, एम्प्लॉय डेटा के बाद स्पेस होगा। होल्ड ऑन, ये शायद ये वाला ब्रैकेट तो नहीं देता। नहीं हम्म? नहीं, हाँ सॉरी, ब्रैकेट ये वाला देता है ना, गलत ब्रैकेट है। हमारे पास क्या हो गया, आप देखोगी तो यहाँ पे एक टेबल बन गया होगा हमारा, आगे ना। हाँ। है? अब ये टेबल में नेम है, कैरेक्टर है, राइट। सो अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एक टेबल और बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम लोग कस्टमर। अब ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम नेम रखते हैं और यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड रखते हैं। क्रेडिट कार्ड इंटीजर हो गया, और इसको रन कराते हैं तो हमारे पास में 2 टेबल बन गया। एक टेबल जिसमें EMP डेटा, एक में कस्टमर डेटा है। लेट्स से भी कस्टमर डेटा वाले में हम एंट्री करते हैं, ठीक है। सो हम कस्टमर डेटा में बोलते हैं इंसर्ट इनटू कस्ट वैल्यूज रवि, और क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग 56453344, करेक्ट। और इसको हम इंसर्ट करते हैं, फिर नाम चेंज करते हैं, और क्रेडिट कार्ड नंबर हम बदलते हैं 7, लास्ट में 4433 की जगह 8877। गुड। अब हम अगर सेलेक्ट स्टार, अभी हमने कितना DTU खर्चा कर दिया पता तुमको? 125 DTU, 2 हो गया, क्योंकि 2 बार डेटा ने इंसर्ट किया है, करेक्ट। हाँ। करेक्ट। अब मैं क्यूरी कर रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट। एवरी टाइम हम कोई क्वेरी या ये डालेंगे तो जितनी बार वो रन CPU होगा। यूज हो रहा है ना। अच्छा, अब जैसे ई-कॉमर्स वाला वेबसाइट है, उस पे इतने कस्टमर करें तो लाखों DTU, इसीलिए तो यहाँ नहीं आता, वो लोग फिर कॉस्ट में डिवी जाते, सस्ता है। करेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे को रिजल्ट में वो दिखाएगा, दिखा रहा है रवि एंड अदिति, है ना, है ना, नीचे दिखा रहा है ना रवि एंड अदिति, आई हैव 2 डेटा, करेक्ट। तो हमने अपना टेबल वगैरह बना लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे फीचर हमें क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना। सो कॉफी पिएगा? नहीं अभी कुछ नहीं पिएगा, हमको थोड़ा सा देना। अभी ये फीचर देखो, सबसे पहला फीचर क्या है? डिफेंडर फॉर SQL फ्री ट्रायल। करेक्ट। तो हमने डिफेंडर ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल कर दिया, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमारे पास में लॉग फाइल है, और ये पूरा का पूरा लॉग फाइल ये हमें अपने आप ये पूरा अलर्ट करके दिखाएगा, इनिशिएट अ न्यू स्कैन फॉर योर डेटाबेस, दिख रहा है। यस। कुछ देर के बाद तुमको दिखा देगा कि तुम्हारा डेटाबेस कितना रिस्की है, क्या क्या खोल रखी हो, क्या क्या सिक्योरिटी तुमने नहीं लगाया हुआ है, ओके। करेक्ट। यस।
है ना। सो ये इस तरह से दिखाएगा। फिलहाल बोल रहा है कि सब कुछ बढ़िया है तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। करेक्ट। वर्नेबिलिटी असेसमेंट क्या बोल रहा है कि अभी आपका जो रिजल्ट है वो सब कुछ क्लियर है। अब हम जाते हैं यहाँ पे सीक्वेल सर्वर के अंदर। सीक्वेल सर्वर में टीपीसी सीक्वेल ले लिया। अब नीचे आओ, देखो यहाँ पे भी सेम कहानी है, राइट। सो हमारे पास में एक डिफेंडर है, दूसरा हमारे पास में फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन। देखो अभी तुम लॉगिन कैसे कर रही हो? अभी तुमने जो यूजर नेम बनाया हुआ वो कहाँ से बनाया हुआ है? वो तो सीधा डेटाबेस सर्वर से डेटाबेस ही के अंदर बनाया हुआ, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमारे एडी में जो यूजर है, हम यूजर अकाउंट एडी में बनाए और उससे इंटीग्रेट करें अपने सीक्वेल को। तो क्लिक करो हाँ एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन से सेट एडमिन। यहाँ पे श्रुति का नाम सेलेक्ट करो। क्लिक करो। वो अकाउंट को हाईलाइट नहीं, अच्छा वो क्या बोल रहा है कि हॉटमेल अकाउंट अलाउड नहीं है, तुमको एक अपना अकाउंट यहाँ बनाना पड़ेगा। ये तो बाहर का हुआ ना, क्योंकि ये हॉटमेल अकाउंट है ना, तो बोल रहा है हॉटमेल अकाउंट को मैं लॉगिन करना नहीं दूंगा। यहाँ जो इंटरनल बनाया है यहाँ तो है राजा, है ना, RAZA, RAZA। एक राजा नाम का बंदा है जिसको मैं अपने सीक्वेल के अंदर परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है, राइट। सो नाउ अब राजा जो है वो अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है, करेक्ट, इस सीक्वेल के अंदर। तो ये हमने पहला फीचर इनेबल किया। कौन सा फीचर था वो? कौन सा फीचर था वो? फर्स्ट फीचर इज एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी एडमिन, राइट। हमने डिफेंडर ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। एक होता ऑटोमेटिक ट्यूनिंग। ऑटोमेटिक ट्यूनिंग क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट वो तुम्हारे जो दो तुम्हारा डेटाबेस है, उस देखो तुम बहुत दिन तक जब यूज करोगी ना, तो डेटाबेस जो है ना डिफ्रैगमेंट वे में डाटा स्टोर करने लगेगा डिस्क के अंदर। ब्लॉक एंड सेक्टर जो होता है ना, ट्रैक एंड सेक्टर, तो अलग अलग वो डिफरेंट ट्रैक एंड सेक्टर्स में वो डेटा उठा के डालने लगेगा। तो अगर तुम्हारा डेटा बहुत ज्यादा अपने हार्ड डिस्क के अंदर डिफ्रैगमेंट वे में है, तो जनरली हम लोग अपने लोकल हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, हम अपने मशीन में हर 2 महीने पे या 3 महीने पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे अपने, जैसे मेरा ये डिस्क है, अब मेरे को 4 महीना हो गया लैपटॉप चलाए हुए, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे हम डिस्क डिफ्रैगमेंट करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं भैया इसको डिफ्रैगमेंट कर दो, इस डेटा को, करेक्ट। तो डिफ्रैगमेंटेशन क्या करता है कि तुम्हारे ट्रैक एंड सेक्टर को हार्ड डिस्क के अंदर ऑर्गेनाइज कर देता है, करेक्ट। तो ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑन रहेगा तो क्या होगा कि तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली वो क्लीन अप होगा, इंडेक्स होगा, सब कुछ हो जाएगा, करेक्ट। तो ये फीचर भी मेरे को ऑटोमेटिक मिला हुआ है। कहाँ पे? हमारे सीक्वेल सर्वर के अंदर, है ना। उसके बाद ऑडिटिंग क्या बोलता है कि आप जो कुछ भी आपके डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म होगा उन सबको आप ऑडिट कर सकती हो, है ना। किसने डेटा इंसर्ट किया, किसने डेटा पढ़ा, राइट। उसके बाद फेल ओवर ग्रुप है, वो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया, राइट। एक होता है क्या, ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन, करेक्ट। यही डेटा इंक्रिप्शन है, अगर तुम उसको कस्टमर मैनेज करोगी तो फिर से वो की मांगेगा, याद है कल वाला, राइट। तो ये सारे फीचर तुम्हारे पास है। ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन है तुम्हारे पास में, अज्योर का डिफेंडर है, ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन है,
ये सारे फीचर तुमको अज्योर सीक्वेल ऑन द क्लाउड देता है। ओके गुड। और अगर हम डेटाबेस बेसिस पे जाए, अगर हम बोलते हैं कि यार मेरे डेटाबेस के अंदर में और क्या फीचर है, तो डेटाबेस के अंदर जब तुम आओगी तो तुमको एक फीचर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड जैसे इंफॉर्मेशन को मास्क कर सकती है। जैसे देखो यहाँ डायनेमिक डेटा मास्किंग, याद है तुमको? तुम्हारे पास जब तुम्हारे बैंक अकाउंट वगैरह का जो एसएमएस आता है उसमें क्या होता है, आगे 4 स्टार लगा होता है, नीचे 4 स्टार लगा होता है, बीच का नंबर दिया होता है, राइट? तो जो एजेंट उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे थे उनको भी वो सही दिखता है, कॉल सेंटर वाले को, उनको भी क्रेडिट कार्ड नहीं दिखता। तो वो क्या करते हैं, वो डायनेमिक डेटा मास्किंग पे आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे इस डेटाबेस के अंदर में एक मास्क ऐड कर दो, राइट? यहाँ पे मास्क ऐड करें। अब हम किसके ऊपर में मास्क ऐड करना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। और क्रेडिट कार्ड कैसे होगा, देखो यहाँ पे वैल्यू है, दिख रहा है? यस। तो तुमको कैसे चाहिए वैल्यू, XXX समथिंग लाइक दैट, है ना? जब आप क्लिक करोगी, ऐड करोगी, तो क्या होगा, वो पार्टिकुलर स्पेसिफिक जो है तुम्हारा, वो उसमें वो मास्क ऐड हो जाएगा। यस। क्लियर ना? यस। करेक्ट। सो अब क्या आगे कोई भी इंजीनियर अगर इसको ऑनर के अलावा, मतलब ये एडमिन को तो दिखता रहेगा, मगर अगर तुम्हारे पास में कोई और इंजीनियर है, वो जब इस डेटा को क्यूरी मारेगा ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो उनको नाम तो पूरा दिखाई देगा, लेकिन उनको क्रेडिट कार्ड में क्या दिखाई देगा, मास्क दिखाई देगा, पूरा नंबर नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखेगा। हेलो, ठीक है, राइट? एंड लास्ट थिंग तुम्हारे पास क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो डेटा क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि आप बता सकती हो कि आपका डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, नॉन इम्पोर्टेंट है, टेस्टिंग है, राइट? तो देखो यहाँ पे बहुत सारा क्लासिफिकेशन ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कस्टमर में ये जो नेम है ये किस तरह का डेटा है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है, या कोई नेशनल आईडी है। फ्रेगमेंटेशन से अलग है, ये अलग चीज है। ये क्या है कि तुम डेटा के कॉलम को बता रही हो कि वो डेटा का कॉलम जो है वो किस तरह का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। ओके। फॉर एग्जांपल अब अगर जैसे यूएस के किसी कस्टमर का डेटा है तो उसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर भी होता है ना? ओके। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो पार्टिकुलर जिसको हम क्रेडिट कार्ड बोल रहे हैं, ये किस तरह का इंफॉर्मेशन है, या फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो कितना सेंसिटिव है आपके लिए, कैन इट बी मेड पब्लिक और इट इज कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल, राइट? तो हम बोलते हैं कि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन तो किसी को लीक होना ही नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, है ना? फिर आप जब इसको ऐड क्वालिफिकेशन कर दोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकुलर जो डेटा है ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में माइक्रोसॉफ्ट अपना वो सारा सिक्योरिटी लगा देगा कि भाई ये डेटा किसी तरह से मेरे डेटाबेस से लीक ना हो। ओके, क्लियर ना, राइट? तो ये है पूरा तुम्हारा सीक्वेल डेटाबेस जो कि आज हम लोग देखे, ठीक है, राइट? सो कौन कौन सा फीचर हमने देख लिया? हमने सबसे पहले तो हम सर्वर बनाएंगे, फीचर्स, एडमिन, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन, बस पहले एडी इंटीग्रेशन है ना, यस, डेटा मास्किंग। सर मास्किंग तो डेटाबेस के अंदर है ना? हाँ, ओके। फिर ट्यूनिंग था, ऑटोमेटिक ट्यूनिंग, एन्क्रिप्शन है, ईडी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रिप्शन, जिसको आप बोल सकती हो, है ना? यस। फायरवॉल भी था क्या? हाँ, एक बाय डिफॉल्ट एक्सेस फायरवॉल है ना, ब्लॉक करता है पोर्ट को। ये सारा जो है फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जब आप अज्योर सीक्वेल पे जाते हैं। जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ने आते हैं कि नहीं मेरे को सीक्वेल तो आता है बट मेरे को अज्योर पे कैसे सीक्वेल करना है, तो ये पूरा जो तुमको पढ़ाया ये एक अलग अपने आप में मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं अज्योर सीक्वेल,
ओके। है ना, जिसमें यही सब चीजें पढ़ाते हैं और लोग खुश हो जाते हैं बच्चे, है ना। यहाँ पे क्लस्टर बनाना सीख गया हमने, यहाँ पे हमने इलास्टिक पूल बनाना सीख लिया, यहाँ पे हमने अलग अलग जोनल रिडंडेंसीज देख लिया, करेक्ट। तो ये सारा चीज हमने देख लिया ऑटोमेटिकली, है ना, इस पूरे सिस्टम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल हम लोग बात करेंगे कॉस्मोडीबी पे। ओके सर, एक स्टूडेंट ने बोला एज़्योर एडमिन के साथ उसको ऑटोमेशन भी चाहिए, ऑटोमेशन है क्या हमारे पास? हाँ है ना, कर सकते हैं, ओके। बट बहुत हाई लेवल पे अगर चाहिए तो फिर नहीं करा पाएंगे, बट हाँ बेसिक्स हम कराते हैं। अगर उसको एडमिन चाहिए तो ये हाई लेवल पे नहीं होगा। हाँ अगर एडमिन में चाहिए तो नहीं होगा, हमारे मैंने उसका वीडियो भी बना के मेरे ख्याल से डाला हुआ है। ये है ना, देखो दिख रहा तुमको ना, यस सर। अज्योर ऑटोमेशन, अज्योर अपडेट, लॉग एनालिटिक्स, ये सारा मैंने डाला, ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ओके सर, ये हमारे कंटेंट में तो होगा फिर 30 नहीं का? कंटेंट में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, ओके। ठीक है, बट हम करा देंगे उसको। ठीक है सर, ओके। ठीक है।